Namaste everyone. Welcome back to the Toy Food Vlog podcast. Today this is episode 2 and today's topic is very close to my heart. Play is not a luxury, it's a biological need. And to talk about this, we have with someone who lives and breathes child development, Miss Tanya Kapoor. She is a child and adolescent therapist and an expert using play as a medium for cognitive, social and emotional development and she is working in Holy Family Hospital. Tanya, welcome to Toy Food. And so excited to have you with us today. We will be having a lot of conversation about play, why it is important for us, for adults, and for kids. So, thank you. Thank you for having me. And it's honestly amazing to be at Toy Fort. Uh, it's just so many toys. Just the visual was so exciting. I'm really looking forward to the conversation. Yeah, great, great. So, a lot of people now today think toys are extras in their life. Okay, something fancy or luxury. But you always say play is a not a luxury, it's a biological need. And it's essential for humans at every age. Can you elaborate on this? Why it's so important? So, play is like food for the brain, for the child, right? I mean, imagine how boring would it be if we were just talking. But you're telling me अगर मैं किसी के सामने toy रख दूं, will they not suddenly react? Suddenly हाथ उठेगा. The brain gets activated like that. So play is necessary, just like food, water. Wow. So you're saying it's not just for kids? Not at all. I mean, आपके social skills, आपके cognitive skills, attention, memory, all these things बचपन के आगे you need a teenager, adult, like you say, right? Toy food पे 0 to 99. Toys are for Yeah, everyone. yeah. We do say that. Do say that. So I love that. Play is not a childish thing, it's very much human. Absolutely. Wow. So now let's address a very big misconception amongst all of us. पेरेंट्स जो हमारे पास टॉय फूड पे आते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होता है 1 मंथ ओल्ड बेबी के लिए भी टॉय इट्स अ नेसेसरी. Absolutely. I mean, like we just said, 0 to 99 actually means zero. Of course, you don't give them loud sounds, wale, no small pieces, जो choking hazard हो सकते हैं, but black and white flashcards, stimulation books, texture books, every kid needs play and toys help in that development right from 1 month. आई लव दिस. सो पर्पसफुल टॉयज इज लीडिंग टू अ पर्पसफुल डेवलपमेंट. Exactly. समथिंग विच इज वेरी फैंसी और लग्जरी वो उनको नेसेसिटी नहीं मानते आज के टाइम में लोग. बट आप अपनी थेरेपीज के अंदर जो मैंने देखा है आपके चैनल्स वगैरह के अंदर यू सजेस्ट कि प्ले इज वेरी मच ह्यूमन एंड इट्स अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन. आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इसके ऊपर बताओ कि व्हाई प्ले इज अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन. See, अगर मैं बहुत ब्रॉडली बोलूं, प्ले इज एक्चुअली लाइक फूड फॉर द ब्रेन. जैसे हमें स्लीप चाहिए, हमें फूड चाहिए, पानी चाहिए बॉडी के लिए, प्ले इज फॉर द ब्रेन. बच्चे की डेवलपमेंट होती है व्हेन दे सी टॉयज. टॉयज आपके सेंसरी एस्पेक्ट को इनहेंस करते हैं, आपका अटेंशन, आपका कॉग्निटिव फोकस जो होता है, इवन योर सेंसेस में. अगर सबसे बेसिक बच्चा आपको ट्रैक करता है, वो टॉयज उस चीज में और हेल्प करते हैं आपको, राइट? एंड नॉट जस्ट children, even teenagers, adults, even at the age of 60, my father still plays Sudoku. वाओ. क्योंकि that is what toys do for you, right? आपका cognitive development बढ़ाते हैं वो. Yes. So that what I mean to मतलब what I understood कि toy is not only for kids, it's for everyone. Exactly. वाह. सो ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे टॉयज में आप थोड़ा सा व्यूअर्स को हम ये भी बताएं अपनी थेरेपीज में कि बेबीज को कैसे वो हेल्प करता है या एक अडल्ट को कैसे हेल्प करता है प्ले. थोड़ा सा आप इसके ऊपर और एलाबोरेट करो कि बेबीज एवरीवन कैसे हेल्प करेगा. तो बेसिकली इफ आई टॉक एट माय वर्क, जैसे अब मैं प्राइवेटली जो देखती हूँ, वी हैव दिस प्रोग्राम कॉल्ड एस्पायर. उसमें भी ओनली यूज प्ले एंड टॉयज, क्योंकि और तो जरूरत नहीं है आपको. प्ले इज दैट बेसिक नेसेसिटी. अगर मैं बेबीज को देखूँ, बिफोर द एज ऑफ 1, आप उनको जितना स्टिमुलेशन दो, ब्लैक एंड व्हाइट में, रैटल्स में, टेक्सचर्स में, बेसिकली इस एज पे बच्चा अपने सेंसेस से फील कर रहा है, राइट? तो अभी मुझे विजुअली ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है, तो हम उनको ब्लैक और व्हाइट कार्ड्स दिखाएंगे, ब्लैक और व्हाइट बुक्स दिखाएंगे. साउंड है, आपने रैटल्स दिए, और आपने बुक्स दी, टेक्सचर्स, टच, फील, ऑल ऑफ योर सेंसेस. बच्चा बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी लूडो हो गई, स्नेक्स एंड लैडर्स हो गई, टर्न टेकिंग हो गई, ऑल दी सोशल स्किल्स. अगेन अगर मैं और अडल्ट के लिए देखूं, अब आप देखो मंडाला आर्ट का कितना आता है, क्राफ्ट कितना आता है, अडल्ट स्पेसिफिक कलरिंग बुक्स आती हैं.
स्ट्रेस रिलीज, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, वो सब भी आपका टॉयज के थ्रू ही होता है. Wow. So that means कि play is not a childish thing. It's very Not at much all. human. Wow. So एक चीज मुझे और बताओ कि मैं मतलब टॉय फूड पे व्हाट आई हैव नोटिस एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हम पेरेंट्स के अंदर या बच्चों के मतलब सबके अंदर कि जो एक 1 मंथ ओल्ड बेबी होता है न्यू बॉर्न बेबी जो होता है कि उसके लिए हम टॉय क्यों लें बिकॉज वो तो टॉय से प्ले ही नहीं कर सकता. Again, Which as a toy store owner I always say ki no it's not like that but I want to listen from you since you are a child therapy specialist so why toy is so much important for a 1 month old baby as well. because like we've been talking up the Piyush, toys are not for entertainment, they're actually for development. और अगर आप उस एज पे डेवलपमेंट को इग्नोर कर दोगे देन व्हाट इज द पॉइंट, राइट? उस टाइम पे आप टॉयज देते हो सो दैट बच्चे का सेंसरी डेवलपमेंट हो. आप जो पालने के ऊपर भी लगाते हो हैंगिंग टॉयज, बच्चा साउंड सुनता है, बच्चा रीच आउट करने की कोशिश करता है, सो योर ब्रेन इज डेवलपिंग कॉग्निटिव. आप विजुअली देख रहे हो कि टॉय कहाँ गया. आप ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स देते हो सो दैट बच्चा एटलीस्ट कॉन्ट्रास्ट में पिक्चर कलर देखना समझ जाता है. he may not recognize the colors of the spectrum but black and white yes. इनफैक्ट एट होली फैमिली हम तो जैसे ही मतलब बच्चा एनआईसीयू से आया वी स्टार्ट प्ले. Wow, मतलब this is very interesting for everyone to understand कि black and white cards जो मार्केट में आते हैं high contrast cards जो आते हैं why it's so important because हम लोग यहाँ पे भी लोगों को बहुत समझाते हैं but coming from you as a specialist this will really definitely help newborn parents as well. Absolutely. So these purposeful toys which are being manufactured by the manufacturers and which are available in the market so it leads to a purposeful development for small babies. Now this is toy food's favorite question. How do parents know which toy is right for their child? This something which every parent keeps on asking. हमारे सेल्स स्टाफ से भी पूछते हैं मेरे से भी पूछते हैं कि हम कैसे चूज करें. इतना वास्ट कलेक्शन एक टॉय स्टोर के ऊपर होता है हमारे टॉय फूड पे भी है एनी अदर टॉय स्टोर जहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो वहां से कैसे राइट टॉय हम निकाल के लाएं अपने बच्चे को. देखो लॉन्ग आंसर शॉर्ट तो पीयूष एंड साई कपूर को फॉलो कर लेना, we'll tell you the right toys. But seriously speaking, there are three things that I think of if I call it the KSS, कैसा टॉय. बेसिकली नॉलेज, क्या ये टॉय मेरे बच्चे के स्किल लेवल, मेरे बच्चे के माइलस्टोन पे है कि नहीं है. आप 1.5 साल के बच्चे को लूडो नहीं दोगे बिकॉज उसका डेवलपमेंटली माइलस्टोन वहां पहुंचा नहीं. एस, सेफ्टी. अगेन ये मैं बार बार बोलती हूँ बिकॉज वी वर्क विद बेबीज 1 month old एज वेल कि चोकिंग हैजर्ड नहीं होना चाहिए. कोई ऐसी छोटी चीज जो बच्चा निगल जाए या प्लास्टिक बैग्स में लिखा होता है नो चोकिंग हैजर्ड. तो नॉलेज, सेफ्टी एंड लास्ट इज स्किल कि लैंग्वेज वाइज, सोशली, कॉग्निटिवली ये टॉय मेरे बच्चे को क्या सिखा सकता है. तो अगर मैं क्ले देखूं तो क्ले में हम क्या कर रहे हैं, कॉग्निटिवली हम सोच रहे हैं मैं इसका क्या बना सकता हूँ. मोटर स्किल है, हाउ एम आई यूजिंग माई हैंड्स. सोशल स्किल, क्या थोड़ा सा क्ले मेरा, थोड़ा सा क्ले तुम्हारा. सो यू हैव टू सी कि व्हाट विल द चाइल्ड लर्न फ्रॉम इट, not what the toy can do it, not कि will he like my toy. Wow, so this is something which every parent should understand. Absolutely. KSS formula जो मैंने भी आज पहली बार सीखा है, knowledge, safety and skill. Wow. So when selecting a toy, I'm telling everyone viewers कि ये मत सोचो, ये मत पूछो कि ये बच्चा मेरे इस टॉय को लाइक करेगा नहीं करेगा. ये सोचना है कि whether ये टॉय से मेरा बच्चा सीखेगा क्या. Exactly. So this is something every parent should keep in mind while selecting a toy. So अब हम आते हैं टीनेजर्स के ऊपर. मतलब एक हम जब यहाँ पे टॉय सेल करते हैं लोग आते हैं कि 10-12 साल के बच्चे हैं मतलब जो बच्चे छोटे छोटे आते थे आज बड़े हो गए. तो हर पेरेंट ये कहता है कि हमारे बच्चे तो टॉय से आउटग्रो कर गए ना, दे हैव ग्रोन अप, दे आर 13 इयर्स टीनेजर्स की वो अब टॉय से खेलते नहीं. ठीक है, विच इज समथिंग आई ऑलवेज टेल देम कि नहीं ऐसा नहीं है. So I want you to elaborate on this कि how toys help teens in their life. तो पहली बात तो up and coming I see teenagers more than anything need toys because unfortunately screen की वजह से teenagers के toys रहे नहीं है. हर teenager बेचारा gadget के साथ है अपने रूम में. But if you look at it, आप जब कोविड में हम सब ऑनलाइन थे, हम सब ने लूडो किंग खेली है, तो ऑनलाइन लूडो किंग वर्सेस अभी ऑफलाइन लूडो किंग में कितना फर्क है. वो मजा ऑफलाइन लूडो किंग में ऑनलाइन में नहीं आएगा. 100% नहीं आएगा. I agree with you. That is why I say कि टीनेजर्स को भी वो टॉयज चाहिए because otherwise हम वो लोनलीनेस ही बढ़ा रहे हैं ना. Yes, अगर हम definitely. लूडो लेकर जाएंगे
और हम दो फ्रेंड्स को बिठाएंगे, वी आर नॉट अलोन. सो डेफिनेटली योर सोशल इंटेलिजेंस, योर स्ट्रेटजी, योर प्लानिंग, मतलब दिस सेक्शन जो आपने यहाँ रखा है, इज आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, इट्स कंप्लीटली टीनेजर्स एंड अबव. माइनक्राफ्ट है आपका, आपके मार्वल के गेम्स हैं, ऑल ऑफ देम True. आर योर प्लानिंग, योर स्ट्रेटजी एंड पेशेंस. Yes. कि वो बनेगा नहीं सही तो नहीं होगा काम. डेफिनेटली मैं सही कि हमारे पास टीनेजर्स के लिए बहुत कुछ होता है जो टॉयज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खेल सकते हो. दिस विल Exactly. डेफिनेटली हेल्प देम अ लॉट इन देयर लाइफ. ठीक है कि आप अपनी बॉन्डिंग बनाते हो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के भी लूडो चेस खेल सकते हो. दैट्स अ वेरी बेसिक बोर्ड गेम्स जो आपको प्ले Exactly. करनी चाहिए. सो नाउ लेट्स गो डीपर इनटू वर्क जो आपकी स्पेशलिटी है. आप टॉयज को एज अ थेरेपी यूज करते हो जी. अपने थेरेपी सेशन में बच्चों के साथ. सो मैं नो मतलब व्हाई ऐसा क्यों कि आप टॉयज को यूज करते हो आप थेरेपी सेशंस में. तो कमिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड ना, हमने ये सीखा था दैट किड्स डोंट हैव वर्ड्स, बिग वर्ड्स नहीं है अपने इमोशन सब कुछ समझाने के लिए, बट दे हैव प्ले. सो प्ले इज देयर लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, और टॉयज बिकम देयर वर्ड्स फॉर इट, देयर इमोशंस फॉर इट. दैट इज व्हाई हम प्ले को यूज करते हैं. बिकॉज अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा कि मैं गुस्सा हूँ, वो टॉय स्क्वीज करने लगता है, हम स्ट्रेस बॉल दे देते हैं, तो इट बिकम्स द नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग, द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग. आप स्किल वहीं पर सीखते हो, सारे टर्न टेकिंग आप सीख रहे हो, आप अपना अटेंशन बढ़ा रहे हो. इफ यू प्ले विद दीज ब्लॉक्स, यू थिंक कि मैं और क्या क्या बना सकता हूँ. सो इट्स योर वे ऑफ कम्युनिकेशन. टॉयज के साथ आप सीखते हो, प्लस टॉयज आपकी सोशल इंटेलिजेंस भी बढ़ाते हैं. आप थोड़ा सा अब इस पे आप कुछ एग्जांपल दे के आप बताओगे कि कैसे एक टॉय मतलब जो आपने इतने सारे सेशंस किए हैं बच्चों के साथ उसमें से आप थोड़ा इलाबोरेट और करोगे कोई एग्जांपल जो आपने देखा हो कि टॉय आपने यूज किया, बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, उससे एक पर्टिकुलर टॉय यूज करने से बच्चे को ये बेनिफिट हुआ. थोड़ा सा आप इसके ऊपर और इलाबोरेट करके बताओ. सो दिस विल मेक एवरीवन अंडरस्टैंड मोर बेटर कि टॉय थेरेपी में कैसे यूज करता है, हेल्पफुल So, होता है. I'll give you two cases because I work with kids with special needs also, हम्म. and those who don't need special needs as such, lifelong neurodevelopmental जो हम बोलते हैं, but कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं या काउंसलर के पास जाना जरूरी समझे, राइट? तो एक केस में क्या हुआ था, वी वर प्लेइंग विद क्ले. तो बच्चे ने स्नेक बनाया, पहले एक स्नेक Okay. बनाया. अब वो उससे रोल करते करते टू में ब्रेक हो गया. सो ही सेड, ओ मम्मा स्नेक, पापा स्नेक. Wow. देन आई सेड ओके, मैं भी बनाती. तो मैंने एक और रोल करके बोल दिया बेबी स्नेक. देन व्हाट ही डिड वाज, क्योंकि वो फैमिली ऑफ 3 थे, देन दे हैड अ न्यू बॉर्न ब्रदर अभी थोड़े टाइम पहले. तो छोटे बच्चे ने, ही इज 5, क्ले थोड़ा सा और लिया एंड ही पुट अनदर बेबी. आई वाज लाइक वाओ. अब व्हाट ही डिड आफ्टर, उसने वो पापा वाला स्नेक लेके बाहर कर दिया, पापा ऑफिस. Wow. सो आई वाज सो शॉक, बिकॉज आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा बोलेगा पापा ऑफिस जा रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, या पापा हमेशा बिजी रहते हैं. बट ही डिड दैट थ्रू क्ले, एंड वी अंडरस्टूड कि उसको फीलिंग हो रही है कि पापा अराउंड नहीं है. True. सो इमोशनल एक्सप्रेशन इज वेरी बिग पार्ट ऑफ प्ले एंड आवर वर्क. एक और एग्जांपल आई विल गिव यू, जो मैं कह रही थी, स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ हम काम करते हैं. हम्म. नाउ व्हाट हैपेंस इज, स्पेशल नीड्स में बच्चे को अगर एक इंटरेस्ट आ गया, और बहुत से पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे मैम ये तो सिर्फ कार्स देख रहा है, या ये सिर्फ एनिमल्स खेल रहा है और कुछ खेल ही नहीं रहा, मैं क्या टॉय लूँ इसके लिए. सो व्हाट आई डू इज, वो पूरा टाइम एनिमल्स के साथ खेल रहा था, मैंने ले लिया फॉरेस्ट और जंगल थीम के पेड़ वगैरह लगा दिया. सेड ओ एनिमल्स आ गए जंगल में. सो ही सेड ओके, दैट ही एक्सेप्टेड कि मेरे ही अराउंड है इसका. देन व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक कार लगा दी, मैंने कहा वो जंगल सफारी में सब जा रहे हैं. देन कार, प्ले, ट्री प्ले, एनिमल प्ले, 3 themes ऑफ प्ले हमारे एक्सपैंड हो गए जस्ट थ्रू इंट्रोड्यूसिंग मोर टॉयज लाइक Wow. दैट. Wow. So that is why I always say कि toy is very important because आजकल हम सोचते हैं कि छोटे छोटे बच्चे की कुछ फील नहीं करते या कोई इमोशन नहीं है, बट दे डू फील. मतलब दे समटाइम्स फेल टू एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशंस बिकॉज उनको कहीं ना कहीं अंदर डर लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो ऐसा ना लगे कि मम्मा पापा को बुरा ना लग जाए. सो बच्चे टॉयज के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं ये. आपको पता है कि टॉयज एक्चुअली हम लोग बहुत एक्टिवली, मैं पर्सनली नहीं करती, बट अगर आप कोर्ट केसेस देखें, या आप जहाँ पे भी बच्चे को कहीं डिफिकल्टी हुई है लाइफ में, या हम बच्चे को गुड टच बैड टच सिखा रहे होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट डॉल्स यूज करते हैं टू एक्सप्लेन. अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी जाते हैं, तो वो डॉल्स के थ्रू बताते हैं कि हाँ डॉल को ऐसा हुआ,
ट्राइंग टू शो कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि अंकल ने मुझे मारा, डॉल रो रही थी, विच इज व्हाट एक्सप्रेशन, वो अपने बारे में ही बताना चाह रहे हैं. Yes. So it's a very active so part of the field. this every parent should understand now कि why toys so important, कि आपको Hmm. अपने घर में टॉयज क्यों बच्चों के साथ बैठ के खेलना चाहिए, कि बच्चे कई बार टॉयज के साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने Exactly. इमोशंस. एक चीज मुझे अब और बताओ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं कि लॉट ऑफ पेरेंट्स फेस कि बच्चों के घर में बहुत टैंट्रम्स रहते हैं, Hmm. ठीक है, कि वो टॉयज के साथ नहीं खेलते, हम बाय भी करते हैं तो लैंग्वेज उनकी प्रॉपर नहीं होती, तो इस जो हमारे घर में रेगुलर टॉयज होते हैं जो पेरेंट्स बाय करते हैं, जो उसके साथ कैसे वो उन चीजों को दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेगुलर टॉयज. Hmm. तो बेसिकली टैंट्रम्स क्यों आते हैं? या तो मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही, या तो मुझे वो इमोशन मैनेज नहीं करना आ रहा, या तो बेसिकली मुझे हारना नहीं आता. आई डोंट लाइक टेकिंग नो, कि मैं नो बोल रही हूँ तो मेरे से सहा नहीं जा रहा. सो टॉयज के थ्रू हम टेम्पर टैंट्रम्स ऐसे ही मैनेज करते हैं. आप गेम्स खिलाते हो, गेम्स टेल यू कि इट्स ओके टू लूज, समटाइम्स यू विन. आप हार जीत का इमोशनल बैलेंस करते हो. आप वेट करना सीखते हो सबसे ज्यादा, कि मेरी टर्न हो गई, अब मुझे वेट करना है, सामने वाली टर्न करेगा. सेम टाइम कम्युनिकेशन ऐड हो रही है ना उसमें. हमने लेबल करना है सब कुछ. यू आर प्लेइंग विद दिस टॉय, ओके काउ है, हॉर्स है, कार है. लेबल एवरीथिंग. लेबल एवरीथिंग यू आर डूइंग. अब तो मैं इस कार को नीचे से लेकर जाऊंगा, फ्लाईओवर के ऊपर आएगी, तो लैंग्वेज बढ़ेगी, मेरी लैंग्वेज बढ़ेगी, मेरा स्किल यूज होगा, मैं टॉय के साथ कैसे खेल सकता हूँ सीखूंगा. प्लस मेरे टेम्पर टैंट्रम्स भी कम होंगे. मतलब ये तो हर पेरेंट का प्रॉब्लम रहता है, तो दिस विल डेफिनेटली थोड़ा सा आप एक, चलो हम एक इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं. कोई मान लो मेरे पास घर में कोई ब्लॉक्स रखे हैं, ठीक है, मैग्ना टाइल्स व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर टॉय नाउ Popular, डेज, कि very बच्चों को useful बहुत and वेरी यूजफुल. popular. माय इवन माय बेसिकली इसके ऊपर एज ग्रुप होती है 3 इयर्स टू 99, बट माय चाइल्ड इज प्लेइंग सिंस ही वाज अ 1 ईयर, माय यंगर वन, Hmm. ठीक है. सो हाउ इट्स अ सिंपल टॉय लाइक ब्लॉक कैन हेल्प रिड्यूसिंग द टैंट्रम्स Okay. एंड अटेंशन स्पैन उनका कैसे बढ़ाया जाए बच्चों का. मैं एक पर्टिकुलर टॉयज एग्जांपल आप थोड़ा सा इस पे इलैबोरेट करो ठीक आप. है. तो लेट्स से कि टेम्पर टैंट्रम आ रहा है क्योंकि बच्चे को सब कुछ तोड़ना है. बहुत सारे बच्चे करते हैं, कुछ भी बनाएंगे तोड़ेंगे, या भाई की कलरिंग शीट फाड़ दी, या दीवारों पे कलर कर दिया. वेटिंग नहीं हो रही, पर वो एक्सेस एनर्जी निकालनी है कहीं. तो मैं अगर खेल रही हूँ बच्चे के साथ, तो मैं पहले सारे ब्लॉक्स निकालूंगी. अगेन लेबल करेंगे, अच्छा ये येलो ब्लॉक मैंने निकाला, कितने सारे कलर्स है, ग्रीन कलर भी है, पर्पल भी है. कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बढ़ा रहे हैं. अच्छा हेल्प करना, वो वाला ब्लॉक दे दो. वी आर टीचिंग द वर्ड हेल्प, क्योंकि कभी कभी बच्चों से हेल्प नहीं मांगी जाती, टैंट्रम हो जाता है. अगेन अब उनको तोड़ना भी है, ठीक है, हम लोग 3 बिल्डिंग्स बनाएंगे, 3 बनाएंगे, उसके बाद तोड़ेंगे. वी आर टीचिंग देम टू वेट, कि जैसे ही बना मैंने नहीं तोड़ा, आई एम लर्निंग टू वेट फॉर 3. सो 3 बनाया, साथ में तोड़ा, बॉन्डिंग हो गई हमारी, प्लस वो एनर्जी निकल गई. यस यस. मतलब ये हर पेरेंट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आजकल की लाइफ में, कि बच्चों के साथ टाइम जरूर स्पेंड करो. Absolutely. भले ही आप हाफ एन आवर स्पेंड करो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम इन देयर फ्यूचर लाइफ. एब्सोल्युटली. एंड हाफ एन आवर नॉट के हमने उनको फोन दे दिया, हम भी फोन में हो गए, हम हाफ एन आवर साथ बैठे. नो नो, नो नो, इट्स टॉय ओनली अबाउट द लेकर. प्ले. प्ले यस. जस्ट, आप भले ही टॉय के साथ मत प्ले करो. आप बच्चे के पास घर में स्लाइड है, मतलब व्हाट आई डू समटाइम्स, माय माय यंगर वन टेल मी कि स्लाइड निकालो, यू जस्ट डू रन 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 अराउंड दैट. मतलब मैं उसके पीछे पीछे भागूंगा, देन ही कम्स बैक टू मी एंड जस्ट वी गिव अ बिग हग टू ईच अदर. सो ये भी एक प्ले का तरीका है. ऐसा नहीं कि आपको टॉय से ही प्ले करना है, जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स एंड प्ले. ग्रेट. सो अब एक चीज मुझे और बताओ कि हमारे पास टॉय फूड के ऊपर और एनी अदर टॉय स्टोर, यहाँ पे भी बोर्ड गेम्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है. बहुत सारा स्पेस एक टॉय स्टोर ओनर अपने स्टोर के अंदर बोर्ड गेम्स को देता है. Why board games are so necessary in life for everyone, and what development it brings to a person as a human being? तो आई फील बेचारे बोर्ड गेम्स आर द मिसअंडरस्टूड टॉय. उनके इतने बेनिफिट्स होते हैं, बट पीपल फील कि ये एक बोर्ड क्या ही कर लेगा. बट इट हैज सो मेनी यूजेस. अगर आप बोर्ड गेम खेलते हो, अगेन यू आर थिंकिंग, यू आर प्लानिंग कि अच्छा मुझे ऐसे विन करना है, या मुझे, हम खेलते थे इतने टाइम से, मोनोपोली खेला है, उसको हाउसी खेला है. आप वेट करते हो कि अच्छा अगर मैंने ये वाला इस बार हाउस खरीद लिया, तो नेक्स्ट हाउस के लिए पैसे नहीं बचेंगे, बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे महंगा वाला है. सो दोस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, द प्लानिंग, हाउ टू विन. प्लस अगर आप देखो कि उसमें वेटिंग कितनी है, आपका अटेंशन स्पैन कितना बढ़ता है.
आप स्नेक्स एंड लैडर में 0 से 100 के बाद ही गेम खत्म करते हो। यस, आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपने बस रील स्क्रॉल की, अटेंशन इज गेटिंग सो पुअर। डेफिनेटली 0 to 100 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता बहुत है। टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब 99 पे जाके हमारी वो गोटी कट जाती है, फिर वापस नीचे आते हैं तो 4 पे दुख होता है, लेकिन बट मजा आता है यार, फिर से वापस ऊपर पहुंचना है, हमें अपने एग्जैक्टली। ओपोनेंट को हराना है। सो दिस समथिंग कि आपकी एक्साइटमेंट बिल्ड होती है और आप बॉन्ड क्रिएट करते हो। लाइक हाउजी तंबूला जो हम लोग सब बहुत खेलते हैं कि 10 लोग बैठे और तंबूला हमने खेली, एक दो नंबर्स आप अटेंटिवली होके आप सुनते हो कि कोई नंबर मिस ना हो जाए, ओके, फिर चिल्लाते हो गया हो हो गया गया हो हो गया। गया। सो अगेन इट क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन एवरीवन हु इज प्लेइंग एब्सोल्युटली। दैट। सो आई मस्ट से कि everyone should play board games in the life। आप भले ही एक हस्बैंड वाइफ खेले, भले ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, बट स्पेंड टाइम ओवर बोर्ड गेम्स। There are a lot of board games available in the market। I can see। Go to a toy store, explore board games। वहां पे जाके आप जो उनका सेल्स पर्सन उनसे पूछो, they will tell you how to play with this board game। नहीं तो आप गूगल करके भी उनको देख सकते हो कि कैसे खेलना है। सो इट विल रिड्यूस योर टाइम टू अंडरस्टैंड द बोर्ड गेम। बट उससे बेटर है कि आप हर बोर्ड गेम के अंदर एक मैनुअल होती है, आप उसको रीड करो। दिस इज ऑल्सो वन वे टू गेट एनक्रॉस इन अ बोर्ड गेम। जब आप उसको पढ़ोगे, आप उसको समझोगे, तो वो एक अलग मजा क्रिएट करेगा उसके अंदर आपको। एब्सोल्युटली। वो एकदम साथ में बैठ के खेलने वाली फीलिंग इज समथिंग जो यस, अनएक्सप्लेनेबल। yes, definitely। Now a very big conflict which I face in a toy store, in my toy fort every time, screen time versus toys। ठीक है, मतलब आज के टाइम में हर पेरेंट परेशान है स्क्रीन टाइम से, और कहीं ना कहीं वो स्क्रीन टाइम बच्चों को देने में एक पेरेंट का ही रोल रहता है कि ठीक है, बच्चे को हम परेशान हो रहे हैं, बच्चे को स्क्रीन देके बिठा दिया, हम अपना काम करते रहेंगे, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। बट नो, नॉट एट ऑल। उसके बाद जब वो स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, तो पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई रिड्यूस स्क्रीन टाइम। आप थोड़ा इसके ऊपर एलैबोरेट करो कि ठीक है, गलती तो हो गई, अब उस गलती को सुधारे कैसे अब उसको हम। तो एक बात सी आई हैव टू अग्री जो आपने कहा ना कि कभी कभार मजबूरी है, कभी तो स्क्रीन देना ही पड़ता है। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अब आप खाना ऑर्डर करोगे, बच्चे को रोकोगे, आई अग्री, कहीं कहीं आपको देना पड़ता है। मॉडरेशन इज ओके। बट अब जो हमने एक्सेसिवली दे के अपना ही नुकसान कराया है, उसको कैसे ठीक करें, राइट? तो एक तो व्हाट आई से इज के गिव एक्टिविटीज व्हाट दे कैन डू। अगर आप सीधा बोल दोगे ये नहीं करना, तो करना क्या है? अगर हम अडल्ट्स को देख लो, आप स्मोकिंग क्विट करने के लिए किसी को बोलो, अब वो आता है निकोटीन, कि इस चीज को मैं रिप्लेस कैसे करूँ ना। अब आपने ये नो बोल दिया, व्हाट आर यू सेइंग यस टू? इफ आई कांट यूज द फोन, व्हाट विल आई डू? सो दैट्स व्हाट आई एक्चुअली सजेस्ट पेरेंट्स कि अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, आप टॉय लेकर जाओ अपने बच्चे का, ना सामने वालों को शोर होगा, प्लस वो बच्चा एंगेज है अपने टॉय में। सो स्क्रीन्स एक्चुअली वेरी सॉर्ट ऑफ नमिंगली वर्क ऑन योर ब्रेन। आपको सोशली डिटैच कर देती है, आप स्क्रीन पे ही देख रहे हो, आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। जबकि एक्टिविटीज हैं, टॉयज हैं, दे मेक यू क्यूरियस। वो आपकी ब्रेन की वायरिंग को कॉन्स्टेंटली फायर कर रही है कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे करना है। हम एकदम 2D से बन गए हैं। सो यू नाउ नीड टू मूव टू 3D। बट कुछ ऐसा जो पेरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत बिजी रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं आजकल, ग्रैंड पेरेंट्स अपने होम टाउन में रहते हैं, ड्यू टू वर्क प्रेशर दे हैव टू मूव टू लाइक टाउन सिटीज लाइक गुड़गांव, दिल्ली। वो पेरेंट्स कैसे बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें? कैसे, बिकॉज वो लोग पेरेंट्स क्या होता है, अपने दोनों वर्किंग गए हैं, अब जॉब पे गए हैं, वहां से थके आ रहे आए, देन दे फील कि यार हमें रेस्ट चाहिए। बट ऐसा क्या करें कि वो बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर पाए, वो और बच्चों के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट कर, बच्चों के साथ प्ले कर पाए। सी अगेन आई मतलब वुड थोड़ा से सा एडवाइस आई वांट टू गिव टू पेरेंट्स कि वो, बिकॉज कई बार हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम नहीं सोच पाते हैं, तो आप एज अ चाइल्ड थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट आप कुछ उस पर एलैबोरेट करो कि कैसे पेरेंट्स को हेल्पफुल करें, कैसे वो इस चीज से बाहर निकलें वो। सी आई थिंक बहुत पेरेंट्स ना टाइम की वजह से ही मार खा जाते हैं। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ पेरेंट उस टाइम जाकर सोचे कि अब मैं आ गया हूँ टीनेजर के साथ में, उसको बोलूँ कि चलो मेरे साथ बात करो, कैसा रहा दिन, उसी में इतना टाइम निकल जाता है। और बच्चा भी डरा होता है, अच्छा शायद अभी स्कूल के बारे में पूछ लेंगे, अब ये मार्क्स पूछ लेंगे, वो रिलेशनशिप एकदम ही वहां पे स्ट्रेन कर जाता है। सो इंस्टेड आप जाओ, आप एक बोर्ड गेम लेकर चलो, आ जाओ 10 मिनट ये खेलते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कभी कभी Yes, वो ही जरूरी है।
यस, उसमें क्या होगा, बच्चा भी बहुत एक्साइटेड हो जाएगा जब हम्म पेरेंट्स खुद से जब घर आ रहे हैं तो कोई बोर्ड गेम मार्केट से खरीद के लेके जा या रहे हैं। दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पेरेंट कि आप ऐसा कुछ करो कि बच्चों को एक्साइटमेंट पैदा हो कि वेन एवर यू एंटर एट होम जस्ट स्पेंड 10 मिनट्स विद देम। तो एग्जैक्टली उससे क्या होगा, आपका भी जो दिन भर का स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। नाउ दिस इज माय फेवरेट पार्ट, जो मैं बहुत मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, जो बहुत मतलब दिन भर हम लोग ये सुनते रहते हैं, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग, क्विक कॉमर्स के पीछे पड़े हैं, चीज घर 10 मिनट पे घर पे आ जाएगी। सो इन दिस वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, why do you think offline toy shopping is irreplaceable? I repeat, irreplaceable. अगर इसका आंसर देखना था तो 10 मिनट पहले ही वुड हैव सीन मी एट द स्टोर। मतलब क्विक कॉमर्स इज क्विक, इट इज कन्वीनियंस, बट वो पर्पस ड्रिवन नहीं है। वो आपका सिर्फ इमीडिएट सेटिस्फैक्शन जो होती है या इमीडिएट शायद अर्जेंसी कभी कभी होती है, वो सॉल्व कर देगा। बट इफ यू वांट टू बी पर्पसफुल अबाउट इट कि टॉयज एक्चुअली काम आए मेरे बच्चे के, देन ऑफलाइन शॉपिंग। आपके घुसते ही सेंसेस अवेक हो जाता है, ऐसे लगता है वाओ, इतना सारा कलर विजुअली आप देख रहे हो, आप टॉय के टेस्ट करके देख सकते हो, आप टच करते हो, इज इट व्हाट आई वांटेड, क्या मेरे बच्चा अभी इतना जेंटल हैंड्स यूज कर पाएगा कि मैं इसको ये दूं या मैं इसको एक हैवियर टॉय ला के दूं। आप चेक कर लेते हो कि ये खेलना कैसे है एक्चुअली, क्या ऐसा ना हो कि मेरे पास इसकी स्पेस ना हो, या ये वाला शार्प पार्ट अभी मेरा बच्चा छोटा है इसको शायद लग जाए। सो द True. सेफ्टी, द सेंसेस, प्लस जस्ट द एंगेजमेंट। आप अपने बच्चे के साथ आए हो, मैं अभी बोल रही थी कि मैं अपनी नीस को, मैं कहीं टॉय स्टोर पे जाऊं मैं नीस को ना लाऊं, इट्स जस्ट अनफेयर। तो True. दैट बॉन्डिंग बिटवीन रिलेशनशिप वो आपको ऑनलाइन नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी। और जब हम भी देखते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे टॉय स्टोर के अंदर, द मोमेंट दे एंटर फ्रॉम द मेन गेट, से वाओ, मतलब इट्स अ टॉय स्टोर इज अ पैराडाइज फॉर देम, कि पता नहीं जैसे या उनको जन्नत मिल गई हो। और समटाइम्स व्हाट, मतलब मैं, मेरे को यहाँ अपने टॉय फूड पे बैठते हुए 23 years हो गए, आई एम नाउ 40 years, ठीक है, आई एम सिटिंग सिंस आई वाज 17। सो जो बच्चे तब छोटे छोटे थे, आज दे हैव, उनकी भी शादियां हो गई, ठीक है। सो वेन एवर दे कम टू टॉय फूड वी इंटरेक्ट एंड ना से, मतलब उनको ना बहुत मजा आता है, वो उनको बचपन की यादें अपनी याद आ जाती है, जब वो अपने पेरेंट्स से आते थे, यहाँ पे जिद करते थे, लेटते थे फ्लोर के ओ ऊपर, गॉड यस। मतलब वो बहुत, उनके साथ बात करने में भी इतना मजा आता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफलाइन टॉय शॉपिंग। In fact, I must say offline shopping for everything. It's not only for toys. मतलब आप या हर एक चीज के लिए आपको ऑफलाइन शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आता भी है, बट समटाइम्स भी हम उसको ट्रस्ट नहीं करते, हम उसको ना साइड कर देते हैं, छोड़ना, कन्वीनियंस पहले आ जाती है। या बट कन्वीनियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी पर्सनल वेलबींग, आपके अपने इमोशंस, आपकी अपनी बॉन्डिंग। जो आप एक कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो अपने आपस में। आप ऑनलाइन तो मंगा लिया, आ गया फटाफट, लेकिन आपने टाइम कहाँ स्पेंड किया। इस बहाने आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है आपको। एब्सोल्युटली। मैं तो खुद यही एवरी, दिस इज नो जोक, मैं हर 2-3 हफ्ते में या महीने में एक बार तो आई गो ऑफलाइन शॉपिंग, स्पेशली फॉर टॉयज एंड स्टेशनरी। क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू सी ना कि और आया क्या है। बिकॉज ऑनलाइन में आप सोचते हो कि अच्छा मुझे ये 4 चीजें लेनी है, मैं वही 4 चीजें ढूंढूंगी। बट ऑफलाइन यू, अच्छा ये भी आया मार्केट में, अच्छा दिस इज हाउ माई किड कैन लर्न फ्रॉम दिस नाउ। दैट्स व्हाई मेक श्योर के 3-4 वीक्स 1 मंथ में एक बार आप एक ट्रिप लगाओ कि मार्केट में ये है, अब मेरे बच्चे को ये भी एक्सपोजर दे दूं, मैं ये भी यस, खेल ले वो। यस। तो वो चीज भी एक चीज और है, मतलब जैसे हमारे पास हजारों टॉयज हैं, ठीक है, आपने अगर कुछ भी चीज देखी, आप ऑनलाइन बैठ के, आपको नहीं समझ आएगा कि ये इस टॉय के अंदर क्या बेनिफिट है, आप दो चार लाइनों में आप नहीं सीख सकते, ठीक है। जब आप ऑफलाइन शॉपिंग के लिए जाते हो तो जो वहाँ का सेल्स पर्सन होता है, जो वहाँ के ओनर होते हैं, सिंस दे आर इनटू दिस इंडस्ट्री, उनकी एक्सपर्टीज है, या वो आपको गाइड करेंगे कि आपके बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप उसके लिए ले सकते हो। एंड दिस इज आवर गोल एट अ टॉय स्टोर, not to just sell the toys, to sell a right toy to a parent, कि वो जब यहाँ से भले ही 1,000 रुपए का, 2,000 का, 5,000 का टॉय लेके जाए तो उसको उसकी वर्थ लगे, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसको प्ले करे। आई थिंक दिस इज व्हाट ना, आई थिंक वन मोर थिंग, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क। जैसे अभी वो डेफिनेटली। वाला टॉय था, मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, बट देन आई आस्क्ड यू एंड इट्स सुपर कूल। मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसे टॉयज भी आते हैं यस, अब। यस, मतलब बहुत कलेक्शन है टॉयज की, आप उसको
चीजों को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते जब तक आप एक ऑफलाइन टॉय स्टोर के ऊपर नहीं जाओगे। हाँ, वहां जाके आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आपके बच्चे हजारों टॉयज दिखेंगे। आप ये भी देख सकते हो वहां जाकर के कि जब बच्चा वहां पे ओपन डिस्प्ले में एंग्रॉस हो रहा है कि आपका बच्चा कौन से टॉय की तरफ इंक्लाइन है। एब्सोल्युटली, या ऑनलाइन तो आपने जो मंगा दिया दे दिया, बच्चों को खेलना पड़ेगा, या नहीं भी खेलेगा, फिर आप बोलोगे यार हमारा बच्चा तो टॉयज ही नहीं खेलता। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चा किस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। whether he like blocks, whether he like remote cars, whether he like board games, whether he like animals, वो आप एक किसी टॉय स्टोर पे जाके ही आप उस चीज को समझ सकते हो। Now tell me 3 golden rules for a toy selection for every parent. फर्स्ट, डेफिनेटली डोंट गो बाय ट्रेंड्स। जस्ट बिकॉज ये दिख रहा है हर जगह, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, वो नहीं लेना है। बी पर्पस ड्रिवन, जो हम बोलते हैं कि ट्रेंड नहीं, स्किल देखो या आइडिया देखो टॉय के पीछे क्या है। 2, लेस इज मोर, ये याद रखना। जितना टॉय कर रहा है आपके बच्चे के लिए, उतना कम आपका बच्चा सीखेगा। सो लेट द टॉय डू लेस, लेट योर चाइल्ड डू मोर। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला टॉय जो मैंने आपको रखने को बोला था, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट 1 स्टिक, बट इसमें बच्चे की स्किल है कि वो ब्लो करके बॉल को ऊपर उछाले। सो लेट द चाइल्ड डू मोर, नॉट द टॉय। Yes. अगेन, लास्ट थर्ड रूल वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सोचते हैं कि जो फैंसी टॉयज है, जो एक बटन दबाया एंड कुछ हुआ, दूसरा बटन दबाया कुछ हुआ, लेट्स बाय दोज। नहीं, मोर वेरिएशन, मोर ओपन एंडेड प्ले जो होता है, कि जैसे ब्लॉक्स हो गए, मैग्ना टाइल्स हो गए, देयर आर सो मेनी वेज आई कैन प्ले विद इट। कभी मैंने रोड बना दी, कभी मैं आई लाइक टू कीप देम इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कि देखो मेरे चश्मे बन गए। सो एक विजुअल इम्पैक्ट अलग हो गया। सो हाउ मेनी वेज कैन आई प्ले विद वन सिंगल टॉय? So open-ended play, less is more, and no pretend, no trend. Wow. So these 3 golden rules for every parent for a toy selection. Absolutely. Thank you, Tanya, for such a wonderful insight My conversation. pleasure. आपने बहुत कुछ पेरेंट को सीखने के लिए मिलेगा इस कॉन्वर्जेशन से। नाउ आई एम कैन गारंटी, लाइक ये एपिसोड देखने के बाद एवरी पेरेंट जो भी टॉय स्टोर में जाएगा, स्पेशली हमारे टॉय फूड के अंदर जो आएंगे, उनके लिए टॉय के मायने बदल जाएंगे, प्ले के मायने बदल जाएंगे। नाउ दे विल लुक एट अ टॉय एट अ प्ले विद होल डिफरेंट मीनिंग। Absolutely, that's the goal ना, मतलब purposeful development में। तो अभी Yes. इतना बात करके टॉय और प्ले के बारे में आई फील लाइक एनर्जाइज के खेल लिया शायद हमने भी थोड़ा yes, कुछ। yes, मतलब टॉय, मतलब आज मैं भी टॉय से इतना फैसिनेट होता हूँ, इतना मजा आता है टॉय स्टोर के अंदर बैठ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके। टॉयज इज अ वंडरफुल थिंग। जिसने भी बनाया, जिसने भी इसकी इजाद किया, जो कहते हैं टॉय को, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट गाय। मतलब दिस इज टॉयज इज समथिंग अमेजिंग टू प्ले विद। I love how toy fort stands for all of this. मतलब Yes. इतना एक्साइटमेंट अगर किसी टॉय स्टोर के में हो तो फिर that passion just Yes. exchanged like that. I love Yes. it. Like recently, I got one a board card game, Uno Mercy, which is very popular. So yes. me and my wife, when our kids sleep, so we spend 10 to 15 minutes playing Uno Mercy. मतलब उससे क्या होता है, आप अपनी एक वाइफ के साथ, बिकॉज आप दिन भर पे इतने बिजी होते हो, जस्ट प्लेइंग 10 minutes a board game with your better half, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपकी बॉन्डिंग जो समय के साथ साथ थोड़ी सी फेड होनी शुरू होती है। मतलब ये एक कड़वा सच है। तो आप उसको दोबारा से आप उसको बना सकते हो अपने बेटर हाफ के साथ। यू स्पेंड टाइम, यू क्रिएट बॉन्डिंग, लाइक करके तो देखो एक बारी। इवन मी, मतलब अभी हमारी न्यू ईयर की पार्टी हुई थी तो हमने सबने फोन्स रखे, 12 बजे तक हमने हटा दिए थे, एंड वी गॉट डॉबल एंड वी गॉट जेंगा। मतलब दैट वाज सो मच मोर फन। वरना हम क्या करते, न्यू ईयर की वेट करते करते बैठते। नॉट एवरीबडी लाइक्स टू गो टू क्लब्स एंड डांसिंग एंड एवरीथिंग। यस, यस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, ठीक है, हमारे टॉय फूड व्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तान्या के भी इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, यूट्यूब हैंडल्स हैं, साई कपूर के नाम से, आप उनको लाइक करो। आपको बहुत कुछ चाइल्ड थेरेपी के बारे में सीखने को मिलेगा। टिल देन कीप प्लेइंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।